मेन पॉइंट्स उसके क्या वो बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। Mrs. XY, age 34. She is gravida 3, para 1+1. 1. Spontaneous vaginal delivery. Baby girl alive and well. Her second pregnancy was in second trimester. Spontaneous miscarriage. That was 2 years ago. Present pregnancy is 32 weeks. And she comes Sir, to the clinic. Ji walaikum. She comes to the clinic. सर मैं सॉरी मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था सर अभी प्लीज आप बताएंगे दोबारा से सिनेरियो। तो ये आप डॉक्टर हेरा बोल रही हैं कि सुंदस बोल रही हैं? जी जी सर हेरा हूँ। हेरा पहले सुंदस थी। अच्छा सर तो चलो कोई बात नहीं, दोनों सुन लो फिर आप दोनों से डिस्कस कर लूंगा। जी सर ठीक है सर। अगर आप डॉक्टर हेरा अभी ज्वाइन किए हो तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जी सर प्लीज। Mrs. XY, age 34, gravida 3, para 1+1. First pregnancy was spontaneous vaginal delivery. Baby girl alive and well. Second pregnancy ended up in spontaneous miscarriage in second trimester. That was 2 years ago. Present pregnancy, she is 32 weeks pregnant. And she has come to the clinic and complains of pain, lower abdomen for last 2 days. No history of bleeding or discharge. Pain is gradually getting worse. Fetal movements are normal. जी, आप में से कौन बोले? सर मैं डॉक्टर हेरा। डॉक्टर हेरा बोले। चलो बोलिए, फरमाइए। जी सर। Sir, I came to know that my patient is 34 years of age and she is gravida 3 para 1 with a previous one miscarriage in second trimester, and now she presented at 32 weeks of gestation with a complaint of lower abdominal pain for the last 2 days. I will, sir, after my introduction, I will confirm the biodata of the patient, her name, education and occupation of the patient, and then I will ask about her date of LMP, last menstrual period, and the details of. Hello. 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 डॉक्टर सुंदस ऑनलाइन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। तो हेरा का तो कनेक्शन टूट गया। Any booking scan was done, and when was her quickening start? एक मिनट हेरा, बीच में आपका 1 मिनट के लिए कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जरा उसको सिक्योर कर लीजिए ताकि फिर आप बोलती हैं तो हम तक आवाज नहीं आती तो फिर वक्त ज़ाया होगा। जी सर। सर अब आ रही है आवाज आपको? जी अब आ रही है। जी सर। फिर शुरू कीजिए। मतलब सर सारा कुछ कर लिया, फिर क्या करेंगे? Sir, I will ask in which trimester her quickening started, and I will ask any anomaly scan was done and what was its report, and then I will take the detailed history about the symptoms with which she is presented. I will ask about as she has a complaint of pain. I will ask about its details, its duration, characteristic, its relieving or aggravating factor, and is this pain associated with any complaint of abdominal tightening,
and parvijana as it was given that parvijana discharge and parvijana bleeding was not there. And I will then ask any complaint of leaking and urinary frequency and burning micturition to rule out UTI, and any bowel problem, that is diarrhea or constipation. Good. Sir, after this I will take the detailed history of her past obstetrical history, her as she is gravid. You will inquire whether she has got any fever or not. जी सर, fever flu rash in first trimester सर बोला था मैंने. Good. ठीक है सर. Sir, then I will ask about her past obstetrical history in detail, as she is gravida 3 para 1 with the first miscarriage. First was her SVD and the second was her second trimester miscarriage. I will ask about its detail and at which about its gestation and how was her termination done, and any history of cervical cerclage. And I will and then I will ask about her gynecological history, about the regularity of her cycle, any contraception history, and pap smear history. And then I will take her past medical history and past surgical history, and history of any and family history of any concern. And I will ask about her smoking or any other drug addiction, any known drug allergies, and her sport at home. Good. Sir, I am done with my history. That finishes your history. Good. चलिए आगे चलते जाएं. जी सर. जी sir, in examination I need to know about her BMI by measuring her height and weight, her blood pressure. सर बताती जाऊँ अभी finding बोलते जाओ. जी sir. Sir, then I will check her blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, and I will see the general look of the patient. I will look for anemia, jaundice, and do neck examination and breast examination, and cardiovascular and respiratory examination. And then I will do the per-abdominal examination in detail, in which I will check her some physiofundal height, lie presentation, and estimated fetal weight, Liker volume, and palpate for the uterine contractions. And I will then auscultate the fetal heart sounds. Good. Then I will need to know her per-vaginal examination, per speculum examination or per-vagina examination, to know about the cervical dilatation. Good. Then I will do the investigations, and in investigation I need to know her complete blood count, baseline investigations about complete blood count, her HB, TLC, platelets, her blood group, and RH factor, random blood sugar, hepatitis B surface antigen, and the anti-hepatitis C antibodies. Sir, urine routine examination for pus cells, proteins, and sugar. And I need her, sir, obstetrical ultrasound. Sir, good. Preferably TVS for fetal well-being and cervical length. ठीक. Very good. आगे चलिए. Sir, investigations तो मेरी complete हो गई हैं, sir. फिर क्या करेंगे? Sir, after this, sir, जो findings मिलेंगी, if she is in a suspected or established or diagnosed preterm labor. सर, ये तो यहाँ तक हम ठीक हैं. जी सर. After investigations, फिर वो जो पेन है, वो आप पेशेंट को कॉलिक की पेन है एब्डोमेन, और आपने इस तरह से कहा नहीं, मैं कह देता हूँ. Gradually the pains are getting worse and the interval between colic is reducing. फिर क्या करें? जी सर. सर फिर जो है सर, और डायलिटेशन का अगर पता चल जाता कि सर्वाइकल डायलिटेशन भी है साथ.
So this cervix is 2 centimeter dilated and taken up. Ji, sir. Sir, then I will manage the patient. First, I will counsel the patient regarding the diagnosis that she is having the preterm labor. And I will explain that preterm labor is the onset of labor before 37 weeks of gestation. And I will admit the patient and explain the risks associated with the preterm delivery and fetal prematurity. That is, sir, about hypothermia, hypoglycemia, respiratory distress syndrome, and increased perinatal mortality and morbidity, and need for NICU admission. And I will manage her by multidisciplinary team approach, involve my senior obstetrician and the neonatologist, and inform them for a need of any cot in NICU. And I will then, sir, I will give the antenatal steroid cover, sir, for fetal lung maturity. And I will do tocolysis. And my first drug of choice for tocolysis will be nifedipine, sir. And I will start it in my dose will be 20 milligram, and will give after every 4 to 6 hours, and will monitor for the patient's uterine contractions. Good. And then I will give it for in BD. I will give it for the 3 days next. And sir, if patient will be in established labor, and the delivery will be expected within the 24 hours, then I will also give her magnesium sulfate for the neuroprotection. Good, very good. And sir, magnesium sulfate will be given, firstly, the loading dose will be given 4 gram IV within 15 to 20 minutes. And then 1 gram per hour for next 24 hours till delivery. एक हो गया, चलें आगे चलें. Sir, after this, when patient, if the patient goes in established labor, and I will give her sport analgesia and monitor continuous electrofetal monitoring, and ensure the presence of the pediatrician at the time of the delivery. And sir, after the delivery, I will do delay cord clamping for 3 seconds and maximum 3 minutes, not more than 3 minutes. And if the mother and the baby are stable, and then I will hand over the baby to the neonatologist and do the active management of 3rd stage of labor. Very good. हो गया, बहुत अच्छा. आपने ये सारा कुछ कवर कर लिया है 10 मिनट में. Generally, you have done well. छोटी-छोटी 2-4 बातें मैं कह दूं आपको. जी सर. पहले तो ये जब मैंने हिस्ट्री प्रेजेंट की, उसमें प्रिजम्पशन ये है जो आपने सही कहा कि 32 वीक पे एब्डोमिनल पेन है जो क्वालिटी इन नेचर है, तो आप उसको ले गए प्री टर्म लेबर में, राइट? जी सर. तो बिल्कुल ठीक किया आपने. लेकिन लफ्ज बोलना था आपने कि मैं पेन को, उसका कैरेक्टर जो है क्वालिटी, ये लफ्ज कहिए, ये क्या कि वो पेन जो है वो क्वालिटी इन नेचर है कि कंटिन्यूस है, और फिर या कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस हो वो फिर लेबर पेन नहीं ना होगी. जी सर, वो और कोई वजह होगी. Colicky. If the pain is colicky, then I will monitor its duration, intensity and frequency. ये अल्फाज बोलिए. ठीक है सर. और फिर यहाँ पे जब आपने कर लिया, वो सारे फैक्टर्स आपने हिस्ट्री में बड़ा अच्छा कवर किया कि जो हिस्ट्री में कमल बताई कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री, आपने नाम नहीं बोले लेकिन उसके अंदर के कंटेंट्स आपने बोले, बहुत ठीक किया. लेकिन यहाँ पे आपने कहना काउंसिल भी कर दिया उसको कि यहाँ पे फिर एक लफ्ज बोलना था
कि अब मैं, if she is in labor, I've got the choice कि whether the patient should be retained in my hospital or shifted to a hospital with an NICU. ठीक है सर. सर वो एक्चुअली हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हैं ना. तो आप यू डोंट टेक इन, आपको ये अल्फाज कहने जी सर. और चूंकि अगर उसको शिफ्ट करना है फिर आपने ये टोकोलिटिक एजेंट्स देने हैं. जी सर. अगर वो शिफ्ट नहीं करना फिर टोकोलिटिक एजेंट्स कोई खास फायदा नहीं है. ये अल्फाज जी सर. बोलने 7 डेज के लिए वो करेंगे, प्रोलॉन्ग कर देंगे प्रेगनेंसी. 3 डेज का काम है. तो 2-3 दिन गेन करने से कोई खास फायदा नहीं है, एक्सेप्ट के आपके डेक्सा कवर वो कवर के. ये अल्फाज बोलने थे. मतलब व्हाई आर यू गिविंग टोकोलिटिक एजेंट फॉर आइदर फॉर शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट और फॉर डेका इफेक्ट. आपने बोला कि लेकिन है 3 डेज. चलो, तो वो अगर अवेलेबल है आपने ये अल्फाज बोलने थे. फिर उसके बाद आ गया कि जब आपने फैसला कर लिया कि वो लेबर एस्टैब्लिश हो गई है तो बोलिए जी कि मैं उसको फिर फैसला करूंगी वेदर, ये अल्फाज नहीं बोले आपने, whether to deliver the patient vaginally or do cesarean section. If everything is favorable for vaginal delivery, that means lie is longitudinal और कुछ नहीं है और फिर तो मैं vaginal deliver करूंगी. अगर lie is abnormal, आपने ये अल्फाज नहीं बोले तो ये decide कि आप assess the patient for vaginal delivery. If the conditions are favorable, I'll deliver her vaginally. फिर फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट, सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज की वो बोल दी आप. फिर वो बोल दी आपने, फिर बोलती. तो इस लिहाज से ये छोटी छोटी 2-3 बातें मिस की, लेकिन मैंने कहा ना यू हैव डन वेल. मैंने पहले ही कहा यू हैव डन वेल, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. दूर बैठा इंसान उसको बड़ी इम्प्रूवमेंट नजर आती है. आप बोल रही थी अगर 100 लड़कियां और सुन रही हैं, सबको इसने ये नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला, ये बोलना चाहिए, ये बोलना. तो ये होता है, दूर वाले को बेहतरी नजर आती. तो जी सर. हाँ, लेकिन ये डन वेल. आप हिरा थी. जी सर. अब सुंदस से हम पूछते हैं. सुंदस सर ये सेकंड पॉइंट जरा प्लीज बता दें कि सर जब पेन को एस्टैब्लिश कर दिया तो उसके बाद ये डिसाइड करना कि शी हैज टू बी रिटेन इन हॉस्पिटल और शी कैन बी डिस्चार्ज. वहां पे ये सेंटेंस रिपीट कर ले सर जी. वो शायद मैंने भी मिस किया ये अल्फाज कहने के जी. मैं उसको एडमिट करके, जब पेन चाहे अभी क्लिनिक में आपने देखी है, you're not sure whether it is labor pain or abdominal pain, admit का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कीजिए. I'll admit the patient and keep her under observation to ensure whether it is preterm labor or the cause of pain is something else. ठीक कहा आपने. तो अब सुंदस है लाइन पे. जी सर. अच्छा, ये तो हमने केस कवर कर लिया. इसमें टोकोलिसिस की भी बात आपने की ना, तो फिर वो टोकोलिसिस के रेफरेंस से आप कॉन्टेक्स्ट में आपने ये पॉइंट कहा था, वो जरा प्लीज सर बता दें. बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एडमिट करके आपका टर्शियरी केयर नहीं भी है वहाँ पे एडमिट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे. अगर वो वाकई लेबर में है फिर आपके पास चॉइस है, उसको टोकोलिसिस करें और शिफ्ट करें टू place where there is NICU whatever. If हमने शिफ्ट नहीं करना, फिर ये कहिए कि इन मेडिसिन के एडवांटेज इज ओनली मे बी पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी फॉर अ डे और 2 or 3. उसमें डेका का डिले की जा सकती है या कोई और किया जा सकता है. अच्छा जी, जब मैं सर इसमें अगर बचाना डॉक्टर सुंदर से ये इसमें अगर
कि अगर चूंकि इसका सेकंड प्रेगनेंसी थी, सेकंड ट्राइमेस्टर में वो डिलीवर अबॉर्शन हो गई थी उसकी, तो इस प्रेगनेंसी से पहले वो आती तो आप उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट करती? सर मैं पेशेंट से पहले हिस्ट्री पूछूंगी कि जो स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्शन थी या विद लीकिंग, जो प्रीवियस सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हुआ है वो विद लीकिंग है या वो विद ब्लीडिंग या खुद ब खुद एक्सपेल हो गया था विद पेन्स के साथ? मैं आपका अल्फाज जरा इम्प्रूव कर दूं कि वो जो एक्सपल्शन थी और क्या वो पेनलेस एक्सपल्शन थी? जी सर। और इजी एक्सपल्शन थी? और क्या पहले वाटर बैग डिस्चार्ज हुआ था? मतलब इस तरह से कहिए ताकि so I'll take the history of her previous expulsion, whether it was easy spontaneous expulsion with with water rupture of membranes, or it was prolonged. Good, very good. और फिर क्या करेंगे? सर मैं फिर उसके बाद पेशेंट की सर he can be the candidate of the cervical cerclage if it's कि वो तो पास हिस्ट्री ले ली ना आपने, जी सर। अब प्रेग्नेंट स्टेज पे आई है तो आपको कहिए कि if she has approached me in a non-pregnant stage, फिर मैं क्या करूँगी तो ensure that it is cervical incompetence, और उसका कोई ट्रीटमेंट करना है या बताना है क्या करना है, ये बोलिए। So नंबर 1 तो आपने पूछ लिया कि प्रीवियस एक्सपल्शन कैसे हुई। फिर उसके बाद अगर if she comes to me as non-pregnant stage, फिर क्या करूँगी? सर मैं उसकी इन्वेस्टिगेट करूंगी, सर्वाइकल लेंथ को असेस करूंगी। सर्वाइकल लेंथ को असेस कर लेंगे, चले। किस तरह असेस करेंगे? बाय ट्रांसवेजाइनल स्कैन। बाय TVS, वेरी गुड। तो हाउ रिलायबल इज दैट? क्या वो रिलायबल टेस्ट है कि प्रिजम्पटिव है? सर इट इज अ प्रिजम्पटिव टेस्ट, ये बताएगा क्या? जी सर, इट इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट। कंफर्म नहीं करता। यस सर, इट प्रेडिक्ट्स द ऑनसेट ऑफ लेबर इन द अपकमिंग पीरियड। जी सर ये लेबर को प्रेडिक्ट करेगा, इसका प्रिजम्पटिव रोल है इसका। वो तो वो तो नहीं, चलो वो कर लिया आपने और वो इनकंक्लूसिव है, फिर क्या करेंगे? सर अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होगी तो मैं पेशेंट को प्रोजेस्टेरोन। हाँ, फिर आप ये कहेंगे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आई विल वार्न हर, क्या करना है? जी सर, सर आई विल वार्न। जी सर, सर आई जी सर, सर आई विल मैं पेशेंट को काउंसिल करूंगी कि देयर आर एज देयर शी हैज हिस्ट्री ऑफ वन प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ फर्दर प्रीटर्म डिलीवरी, दैट इज 20%. गुड। Okay, and said there is also, according to the guideline, there is also a role of prophylactic progesterone in the history of, if there is a previous history of preterm labor. So I will also give patient prophylactic progesterone daily per oral. And okay, or and then I said if the patient at 14 to 24 weeks of gestation, if the patient has transvaginal scan on transvaginal scan cervical length is less than 2.5 millimeter, then I will go for prophylactic cerclage as well. 24 weeks पे, उससे पहले क्यों नहीं? नहीं सर, between 14 to 24. Sir, I have said between 14. मैं आप ये कहिए at the end of first trimester I will evaluate by TVS the length of cervical canal and then accordingly decide whether she needs cerclage or not. इस तरह से बोलो। Yes sir. जी, अच्छा जी, तो उसको सर्कलाज नहीं किया आपने क्योंकि सर्वाइकल लेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर से ज्यादा है और नो फनलिंग, तो फिर आ गई आपके पास। फिर सर
Sir, I will assess for any causes of preterm labor in this current pregnancy, like urinary tract infection and vaginal discharge, any history of, and further any factor which can be disposed to preterm labor, like polyhydramnios, or either the current pregnancy is a single pregnancy or multiple pregnancy, and sir, any cervical injury or any history of any cervical trauma. And अब बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन क्या ये जब पहली दफा आई थी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे, हमने ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे उस वक्त कि जो आपकी पिछली प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर में जाया हुई, तो क्या आपके पॉलीहाइड्रेमियोस, ट्विंस और ये वो नहीं थे? और दूसरा कि मैं एग्जामिन करूंगी उसको कोई फाइब्रॉइड कोई ऐसी चीज तो नहीं थी, और जैसा आपने सर्विक्स का बोला एब्डोमेन में ये भी बोल देती तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता। सर उस टाइम पे याद नहीं रहा था। हाँ सर उस टाइम पे वो मिस हो गया था, याद नहीं रहा था उस टाइम पे। हाँ, तो वही तो रिपीट करने का फायदा ये है कि अगली दफा फिर याद रहेगा आपको। जी सर। चले तो फिर हम आप अगर डिसाइड करें उसको सर्कलाज लगाने का, कब लगाएंगी और कैसे लगाएंगी? सर मैं सर मैंने 14 I will assess for the transvaginal scan on about the cervical length. If the cervical length is less than 2.5 millimeter, then I will go for the prophylactic cerclage at 14 weeks of gestation, and by McDonald's suture, sir. McDonald's suture लगाएंगे. Good. Why have you chosen 14th week? Before 14 weeks, there is no role like तकरीबन ठीक है, कहने का अंदाज ठीक। सर फीटल हार्ट रेट कंफर्म करके सर वाइबिलिटी उसकी देखते हैं। नहीं रूल आउट हो जाए, takes over completely from corpus luteum और प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी होती है ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए 14 वीक्स और उसके बाद 14, 15, 16 लगाया जा सकता है। लेकिन प्लीज रिपीट कर दें, डिसरप्शन थी, प्लीज रिपीट करेंगे वाला बात। 12 वीक्स से 14 वीक्स पे जो प्लेसेंटा टेक्स ओवर फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग progesterone and other hormones from corpus luteum, ताकि प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, वो वेल एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद आप कुछ करते हैं। ये वजह है 14 या उसके बाद लगाने की, या उसके बाद लगाने की। चलिए आपने मैक्सॉन सर फीटल एनोमली भी रूल आउट हो जाती हैं, वो भी है। माशाल्लाह एंटी हाँ सर, एंटी भी कर लेते हैं ना, नकल ट्रांसलूसेंसी और थिकनेस, वो ही एनोमलीज जो 14 वीक्स पे आप वो कर लेते हैं, तो वो भी एक उसका दूसरा पार्ट हो गया। वेरी गुड, थैंक यू फॉर सजेशन। तो इसीलिए 14 वीक्स का हम इंतजार करते हैं और उसके बाद लगाते हैं। मैकडॉनल्ड्स कभी आपने लगाया है? सर आई हैव सीन इन माय डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने खुद लगाया नहीं है। आपने 4 साल में लगा लिया होता। जी सर लगाया है सर मैंने लगाया। इन्होंने नहीं लगाया? जी सर लगाया हुआ। चलो इन्हीं से मैं पूछता हूँ सुंदर से, तो जब लगाया था तो आपने देखा क्या कैसे लगाया था? जी सर एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस लगाया था, और सर एक साइड पे सर how do you reach level of internal loss? सर बाय सर सर्विक्स को प्रॉपर विजुलाइज करके, लेंथनिंग करके, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से रिट्रैक्ट करके, और जिन्होंने लगाया वो बोले। अभी बोली थी कोई कि मैंने लगाया, वो बोलो। सर अगर सर्विक्स शॉर्ट हो तो फिर यूट्राइन साउंड डाल के हम लोग उस तरह करते थे इन द यूरिथ्रा, लोअर लिमिट ऑफ डालो। एक मिनट
वो प्रेग्नेंट है, यूट्राइन साउंड डाल के तुम क्या करोगी? उसकी मेम्ब्रेन रप्चर। सर नहीं सर, ब्लैडर को रिट्रैक्ट करते हैं, ब्लैडर को ऊपर की तरफ सिम सैकुलम से सेपरेट करके रिट्रैक्ट करते हैं। सर मैं बोल रही हूँ डॉक्टर सानिया, ऊपर से रिट्रैक्ट करते हैं और फिर जो है आप पहले वाला जो आप सानिया ठीक बोली। मैं बताऊं कि आपने बताना इस तरह है कि जी पेशेंट को पूरा यहाँ से शुरू कीजिए, लेट द एग्जामिनर से के सीधा चलो ब्लैडर रिट्रैक्शन पे, लेकिन आपने कहेंगे अंडर एनेस्थीसिया, एसेप्टिक कंडीशंस, लिथोटमी पोजीशन, और फिर लिथोटमी पोजीशन के बाद मैं होल्ड द सर्विक्स with anterior lip and posterior lip with 2 sponge holding forceps, and then according to my TVS report I will make a transverse incision at the reflection of the bladder from the cervix and then push the bladder up to reach internal os. मैं दोहरा देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए सर्कुलर कैसे करेंगी तो आप इस तरह से बोलेंगे कि आफ्टर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, lithotomy position, aseptic measures, empty bladder, and then hold cervix, anterior posterior lip with 2 sponge holding forceps, pull it down, and TVS report से कि ब्लैडर रिफ्लेक्शन कहाँ पे है कि वो बताएगी आपको कि इतने मिलीमीटर इतने सेंटीमीटर पे है, वहां पे ट्रांसवर्स इंसिजन बना के ब्लैडर को पुश करूंगी अप और फिर रीच इंटरनल ऑस, देयर आई विल अप्लाई द स्टिच अंडर द स्किन ऑफ द vagina or stratified squamous epithelium covering the cervix. ये आप बोलेंगे। हाँ जी सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैकडोनल्ड स्टिच में सर इंसिजन देते हैं हम? सर हम जी स्टिच नहीं लगाएंगे? यही फर्क है बिटवीन मैकडोनल्ड एंड शिरोडकर में। जी सर, उसमें मोबिलाइज नहीं करते हम उसको ब्लैडर को। हाँ, बगैर इंसिजन मेकिंग, विदाउट पुशिंग द ब्लैडर अप, आप स्टिच अंडर द स्किन अप्लाई कर देते हो, दैट इज नोन एज शिरोडकर स्टिच। शिरोडकर, जी सर, थैंक यू। और जहाँ आप मैकडोनल्ड का लफ्ज इस्तेमाल करें वहां पे है कि ब्लैडर को पुश करना है इंटरनल ऑस तक, एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस अंडर द स्किन स्टिच लगाना है, वो मैकडोनल्ड है। ठीक है सर। दोनों में मामूली सा फर्क है, तो आमतौर पर हम शिरोडकर लगाते हैं, कह देते हैं उसको मैकडोनल्ड, दैट इज नॉट मैकडोनल्ड। शिरोडकर स्टिच इज विदाउट एनी इंसिजन, एज हाई एज पॉसिबल आप स्टिच लगा देते हैं। मैकडोनल्ड में you ensure that you apply it at the level of internal os. That is possible only if you push the bladder up. Push the bladder up. वो इंसिजन देना पड़ेगा ताकि वहां से ब्लैडर फिर रिट्रैक्टर डाल के ब्लैडर ऊपर चला जाएगा, फिर आप डालें। ये दोनों नामों के साथ जो फर्क है वो यही है। शिरोडकर विदाउट इंसिजन, मैकडोनल्ड विद इंसिजन, राइट? हो गई बात? कोई बोल नहीं रहा? सर शिरोडकर का क्या बताया कि फ्रॉम व्हाट टू व्हाट ड्यूरेशन? सर जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर लें। योर वर्ड्स आर गोल्डन। शिरोडकर स्टिच में कोई इंसिजन नहीं देते। जी जी सर, जी जी सर। एज हाई एज पॉसिबल आप स्टिच लगा देते हैं सबक्यूटेनियसली। नहीं सर, शिरोडकर में तो इंसिजन देंगे, मैकडोनल्ड में नहीं उल्टा है बाबा। सर मैकडोनल्ड्स में नहीं देते ना? जी सर, मैकडोनल्ड में नहीं देते, शिरोडकर में तो सर में देते इंसिजन हैं। देंगे, मोबिलाइज करना है हमें यूट्रस को। पढ़ूंगा लेकिन आप भी पढ़ लीजिए। एज फार एज दोनों में फर्क ये है कि एक में इंसिजन देते हैं, ब्लैडर को पुश ऊपर को करके फिर स्टिच लगाते हैं। सर वो इस तरह से नहीं है कि
शिरोडकार एब्डोमिनल भी होता है और विजाइनल भी होता है शिरोडकार। सर शिरोडकर में देते हैं, सर शिरोडकर में देते हैं, मैकडोनल्ड में नहीं देते सर। अच्छा, मैकडोनल्ड में एस हाई एस पॉसिबल जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ऊपर लेके। तो मैकडोनल्ड से यूज करते हैं ना। मेरा इंप्रेशन यही है कि जो हम स्टिच लगाते हैं विदाउट इंसिजन, वो मैकडोनल्ड नहीं होता, वो श्रॉट का होता है। चलो, अब जो भी है, दो टेक्निक है, आप क्लैरिफाई करके कंफर्म कर ले। एक में इंसिजन दे के ब्लड को ऊपर करके फिर इंटरनल ऑस पे स्टिच लगाते हैं, और दूसरे में विदाउट एनी इंसिजन आप स्टिच लगा देते हैं। नाम इसका सही कर लीजिए, मैं भी कर लूंगा फिर आगे। चलें, ये तो हो गया सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का। तो उसके बाद अगला सवाल, आप टोकोलिटिक एजेंट कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर सुंदस? सर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, नाइफिडिपिन, ठीक है, और ठीक है सर एटोजिबैन दे सकते हैं। गुड, ठीक है सर, हम लोग नॉट जी, और मैक्सल भी दिया। उसके बाद सर हम बीटा मेमेटिक्स भी दे सकते हैं। बस ये 2-3 नाम लीजिए और उनकी डोज वगैरह सारा याद रख के फिर बोलिए। सर एटोसिबान जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल तो नहीं है, तो सर उसका नाम लेंगे हम? ये कहिए, साथ ही बोल दीजिए जी, एटोसिबान नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, बस। ठीक है सर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने किताब से पढ़ा हुआ है। जी सर। नेक्स्ट, what are the complications to the baby born prematurely? Sir, there are the neonatal complications, that is respiratory distress syndrome, and it can patent dictorosis, necrotizing enterocolitis, and there is a short-term complications, that is feeding difficulties and sepsis, infection, and long-term complication will be the cerebral palsy, growth difficulties. And पहले आपने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन पहले आप बोलिए इमीडिएट। जी सर। एट बर्थ। जी सर। उनको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया ये वो हो जाता है, फिर थोड़े दिनों के बाद उसको जॉन्डिस हो सकता है, फिर ये जो आपने बोली है लॉन्ग टर्म भी, इस तरह से सीक्वेंस में बोलिए। ठीक। तो इमीडिएटली जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ, अब हाइपोकैल्सीमिया भी होता है। जी सर। तो ये हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है, और उसको फिर इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। उसमें ये जो लॉन्ग टर्म है सेरिब्रल पाल्सी तक हम चले गए। ठीक है जी सर। अब आगे वापस हम चले जाते हैं। वो जो पहली लड़की थी उसके क्या नाम था आपका? हेरा सर। हेरा, आप बताइए कॉजेज ऑफ प्रीटर्म लेबर। जी सर, प्रीटर्म लेबर की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं सर, जिसमें सर मोस्ट कॉमन जो है वो इन्फेक्शन है सर। इसके अलावा सर्वाइकल वीकनेस, और सर जो इन्फेक्शन है वो सर फर्दर असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इसके अलावा सर कोई प्रोसीजर हुआ आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन एग्जामिनेशन से इस तरह, और सर स्ट्रेस हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। गुड। और सर इतना अच्छा पहले काम करके इतना पुअर अब नहीं सर, मैं सोच रही हूँ सर, हेमरेज हो गया, स्ट्रेस हो गया सर, कोई इंटरकरेंट इलनेसेस भी हैं सर। ना रुक जाइए, नॉट ऑर्गेनाइज्ड स्मोकिंग जी सर। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म, सर प्रेगनेंसी इंटरवल्स अगर कम हो, वो भी है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल। आप जंप कर रही है, कभी इधर है कभी उधर है, कभी आप पहले प्री प्रेगनेंसी कॉजेज जो है वो बोलिए, जिसमें यही है कि इंटरवल बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज थोड़ा हो तो। जी सर मैटरनल एज, मैटरनल वेट, लो बीएमआई। जी सर, स्मोकिंग जी सर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करता है सर, स्ट्रेस। अब आप सही पटरी पे चढ़ गई हो ना।
पहले जी सर। प्रेगनेंसी से पहले की कॉजेज बोलो ये। जी सर, प्रेगनेंसी से पहले की। जी सर। फिर तो उसी में फाइब्रॉइड भी आ गया। जी सर। तो फिर IUCD और सर। malformation ऑफ द यूट्रस भी आ गया। जी सर। तो फिर बोलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी सर। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्री एक्लेम्पसिया, डायबिटीज, ये वो। जी जी सर। फिर आ जी गया सर, वो आइट्रोजेनिक काजेज होंगी कि जिनमें हमें प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ सकती है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद फिर आप बोलिए ये जो आपने आखिर में पहले बोली थी, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, सर्वाइकल वीकनेस है सर। सर्वाइकल वीकनेस है, ये इस तरह से बोली। ठीक है बेबी सर। की मेलफॉर्मेशन हमने नहीं बोली थी, तो जी सर। ट्विंस और मेलफॉर्म बेबी इस तरह बोलेंगी, फिर आप भूलेंगी नहीं, फिर आप जी कोई सर। मिस नहीं करेंगी। ठीक है सर। सो कॉजेस ऑफ प्री टर्म लेबर, फिर बोलिए। जी सर। सर ये जो कॉजेस प्रेगनेंसी से पहले की है सर, वो आपने बताया कि स्मोकिंग है, लो बीएमआई है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ऑफ लेस देन 1 ईयर सर, और इसके अलावा जो है सर मैटरनल एज पैरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, जैसे स्ट्रेस वगैरह, अनएम्प्लॉयड बिल्कुल सर, और यूट्राइन अनोमलीज तो सर जो एनोमलीज ऑफ द ये ठीक। previous जी सर। preterm और स्मोकिंग प्रीवियस। अल्कोहल जी सर, स्मोकिंग, वो अल्कोहल हो गया, लो बर्थ वेट और ड्रग्स। और लो बीएमआई सर। चलो ये जी बोल सर। के ये आप प्रेगनेंसी के दौरान सर उसमें इन्फेक्शन है, सर्वाइकल वीकनेस है, मल्टीपल गेस्टेशन है, प्री क्लैम्शिया सर, हाइपरटेंशन। चलो ठीक हो गया, वेरी गुड, माशाल्लाह। और ये हो गई। व्हाट्स द इंसिडेंस ऑफ प्रीटर्म लेबर? सर मैं सर बताऊं? इंसिडेंट 7 20% to है सर। 12%, 7 to 12%, 7 to 12%. सर आफ्टर वन प्रीटर्म ये 20%। फिगर बेहतर है, 20 नहीं है, 7 to 10 किताब में 7 to 10 लिखा हो। अच्छा, ये हम अगला सवाल, ये जो स्टीरॉइड देते हैं वो किस लिए देते हैं? सर ये हम लंग मैच्योरिटी के लिए देते हैं। वेरी गुड। और ये कब देना चाहिए? सर ये 24 वीक से 35 + 6 वीक्स तक दे सकते हैं। उसके बाद भी दे सकते हैं 34 मतलब 35 + 6 सर गाइडलाइंस में दिया। ठीक। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी? सर साइड इफेक्ट सर डिरेंज शुगर लेवल हो सकते हैं। हाँ? वो शुगर तो लेवल मैटरनल का है सर, वो भी उस पे नहीं होगा। वो तो मैटरनल लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड से होता है सर, अगर वो डायबिटीज का रिस्क। और मुझे फर्क साहब बता रहे थे, लेटेस्ट स्टडी छपी है कि जिन बच्चों के माँ को स्टेरॉइड लगे थे तो उनका IQ 11-12 साल की उम्र में थोड़ा पीछे था, बराबर नहीं था। ये मैंने एक पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ था कि न्यूरो बीपीडी डेवलपमेंटल सर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले लिखा डिक्रीज हुआ होता है। न्यूरो हाँ, डेवलपमेंटल। वो थोड़ा वो। चले आखिरी सवाल। जी सर। हाउ डू यू डिसाइड मोड ऑफ डिलीवरी? सर मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड सर अपॉन हिस्ट्री के, मतलब प्रीवियस उसकी क्या वो थी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी, कैसी स्कार है या प्रीवियस एसवीडी है। और सर इस प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि उसकी लाय क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, और डायलिटेशन, और उस टाइम पे बिशप। ठीक। सर और इसके अलावा हेलो, अगर बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर हो तो उसमें भी सेक्शन कर देते हैं जी सर 20 जी सर वो मेंशन है कि अगर प्रीटर्म हो और ब्रीच हो तो फिर आप उसको वो करो, सिजेरियन करो। गाइडलाइन में सर ये लिखा हुआ है 26 to 36 वीक्स विद ब्रीच। वेरी गुड, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट वेल। ये बातें जो बाद में की हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर एक सवाल है, और बेबी की केयर, बेबी की कॉम्प्लिकेशंस और मोड ऑफ डिलीवरी, ये भी आपको याद होनी चाहिए।
जी सर। क्योंकि स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पे जाएंगे तो ये बातें भी पूछी जा सकती है आप। सर फीटल फाइब्रोनेक्टिन का रोल है अभी कोई, या वो नहीं बोलेंगे? फाइब्रोनेक्टिन मेरा ख्याल है हम करते तो नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। गाइडलाइन में लिखा हुआ है सर कि अगर वो इसका कहते हैं टीवीएस अवेलेबल ना हो तो फिर आप फीटल फाइब्रोनेक्टिन करें, लेकिन अब सर वो भी उसका भी इतना नहीं है सर कोई वो। प्रिडिक्टिव रोल है। मैं तो लाया नहीं डिस्कशन में, किताब में मैंने कहा ना लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हम करते नहीं है, टीवीएस का इस्तेमाल करते हैं और उसी पे रिलाई करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको फाइब्रोनेक्टिन कैसे, कहाँ से बनती है, क्या उसका लेवल क्यों कम या ज्यादा हो जाता है, तो आना चाहिए। सर वो गाइडलाइन में था कि आफ्टर 30 वीक्स अगर पेशेंट प्री टर्म लेबर के साथ आती है ना, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि टीवीएस करें पहले उसकी सर्वाइकल लेंथ देख के, और अगर टीवीएस नहीं करवाना चाहती अवेलेबल नहीं है। पेशेंट तो फिर फीटल फाइब्रोनेक्टिन करें। हाँ तो हम पहले तो बात ये है, फाइब्रोनेक्टिन इज लेबोरेटरी टेस्ट और टीवीएस आपके अपने हाथ में है। उसमें लेंथ अगर लेस देन 15 mm है तो विद इन 48 आवर्स उसको डिलीवर कराएं, सर इसका उसका मतलब उन्होंने कहा है एस्टेब्लिश हो जाएगा डिलीवर, वो है सर उसमें प्रेडिक्टिव ये है है। कि सर उसमें ये है कि फीटल फाइब्रोनेक्टिन की हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है 99.9%। तो वो ठीक, फिर ये है कि आप ना वो मतलब वो आपको रेफरल से शुरू बचा में लेते हैं और मेडिसिन से बचा लेते हैं। यार मतलब फाइब्रोनेक्टिन इस तरह से है कि न्यूयॉर्क में सारी दुनिया के पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही थी। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिकन ने कहा कि जी हम तो विद इन ए वीक कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं कि जहाँ पे कोई डकैती हुई हो या कुछ। इंग्लैंड वालों ने कहा कि जी हम विद इन 1 or 2 days पकड़ लेते हैं, और तीसरे ने कहा यूरोपियन ने कि हम तो इमीडिएटली एक दिन क्या हम छोड़ते नहीं, उसी दिन पकड़ लेते। पाकिस्तान ने कहा हम एक दिन पहले पकड़ लेते डकैती होने से पहले। तो उन्होंने कहा ये तुम कैसे पकड़, कहते सानू पहले पता होता किने किथे डाका पाना। तो ये पाकिस्तान की, तो इसीलिए आप सर हम करते तो नहीं है वैसे फीटल फाइब्रोनेक्टिन, तो फिर जो करते नहीं है वो बोलना तो नहीं चाहिए। बाबा आप ही डिस्कशन में लाए, मैंने तो उसका मतलब पूछा तक नहीं आपसे। जी सर। आप खुद लाए उसको। मैंने बुक में देखा शिरोडकर में सीएन है और मैकडोनल्ड में नहीं है। जी ऐसे ही है सर। आपने देख भी लिया, बहुत माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट दिस। चले हमने रिवर्स बताया, आप उसको सही कर लीजिए। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सर एक क्वेश्चन है सर, अगर पेशेंट 32 वीक्स पे प्री टर्म लेबर के साथ आई है या सस्पेक्टेड थी, टोकोलाइज किया, पेशेंट्स की पेन सेटल हो गई और सब कुछ था, डिस्चार्ज भी नहीं था, लीकिंग भी नहीं थी, सर 34 + 5 वीक्स पे फिर दोबारा आ गई, ये सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब दोबारा उसको टोकोलाइज कर रहे हैं तो फिर सर उसको कहाँ तक लेके जाएंगे? होती है तो ठीक, मतलब मेरा तो ख्याल है सर अच्छा डिलीवर नहीं कर देंगे अब सर? सुन लीजिए, अच्छा सर प्लीज सर को बोलने दें। एक अब आप मुझे बोल रहे हैं कि जब हम प्री टर्म लेबर की बात करते हैं, पर्पस इसके वो 34 वीक से ऊपर चली जाए फिर डिलीवर हो जाए, तो फिर वो नियोनेटल मोर्टेलिटी उस तरह से नहीं आई, तो इस बेबी इज गुड इनफ, तो उसको इंटेंसिव नियोनेटोलॉजी की शायद जरूरत भी ना पड़े। सो पर्पस ऑफ prolonging pregnancy is taking it beyond 34 weeks. तो अगर पेशेंट 34 वीक्स के बाद आता है तो उसको फिर आप कहिए कि उसको NICU की पॉसिबली जरूरत नहीं होगी, इसलिए बाकी सारी मैनेजमेंट वो जो प्री टर्म लेबर की है वो मैं अपने अस्पताल में अपने कर लूंगी, और वो जो बातें अभी की हैं वो सारी मैं करते। आपकी बात सही है, 30 वीक्स पे 32 वीक्स पे आए, वैसे किताब के मुताबिक नहीं होता, प्रैक्टिकली हम करते हैं, उसको टोकोलाइसिस दे दिया और वो सेटल हो गई, हमने भेज दिया। किताब के मुताबिक वो सेटल नहीं होती जो लेबर में होती है,
इम्तिहान में ये याद रखिए कि जो एक्टिव लेबर में है वो टोकोलाइसिस से नहीं सेटल होती, इसीलिए पोस्टपोनमेंट के लिए है 2-3 दिन में कर दो, वरना उस पेशेंट ने तो लेबर में जाना ही जाना। किताब की बात है। आपने प्रैक्टिकली पूछा, प्रैक्टिकली हमने लगाया ड्रिप, वो सेटल हो गई, पॉसिबली वो फॉल्स लेबर पेन थी और वो सेटल हो गई, तो फिर 2 हफ्ते बाद फिर आ गई, तो ये फॉल्स लेबर होगी जो सेटल हुई। किताब के मुताबिक सही जो एक्टिव लेबर है वो सेटल नहीं होती। सर आइडियली टोकोलाइसिस कितने दिनों के लिए करनी चाहिए आइडियली? कितने दिन के लिए? जी टोकोलाइसिस आइडियली वो जितने दिन की आपको जरूरत है टू शिफ्ट द पेशेंट टू NICU वाले अस्पताल में, टर्शियरी केयर में। 3 days ही लिखा हुआ है हर जगह। लेकिन सर इसमें प्रैक्टिकली प्रोजेस्टेरॉन का वो इंजेक्शन लगा सकते हैं? मैक्सिमम 3 दिन का एडवांटेज है किताब के मुताबिक, मैक्सिमम 3 दिन। सर एक क्वेश्चन इंजेक्शन ग्रेविनैन इसमें लगाते हैं जब आप बहुत सारे बोल रहे हो, एक बोले। हाँ जी सर, जब हम सिजेरियन करते हैं तो हर सिजेरियन से पहले हमें स्टीरॉइड देना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज? जी बिल्कुल, ये एक रूटीन बन गई थी, लेकिन अब जो स्टडी आ गई है कि दे डू इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म, तो मेरा ख्याल है हर एक को नहीं देनी चाहिए। आप ये कहिए इम्तिहान में कि प्रीवियसली फॉर टू अवॉइड RDS इवन एट टर्म बेबी को भी हो जाता है, तो हर एक को दो, लेकिन अब नहीं, बिकॉज द लेटेस्ट स्टडी शोज इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द बेबीज लॉन्ग टर्म। सर एक और क्वेश्चन है कि जब भी इन्होंने पूछा कि 32 वीक्स पे एक पेशेंट आई, हमने उसको टोकोलाइज किया, वो ठीक हो गई, लाइक 34-35 पे वो दोबारा प्रीटर्म के लिए, लेकिन वो एस्टेब्लिश लेबर में नहीं है, अगेन वही पोस्ट लेबर है, तो फिर सर हम उसको निफ्टीपीन दोबारा दे सकते हैं उसी तरह जैसे एक सकते हैं, लेकिन जरूरत जब वो एक्टिव लेबर में वाकई नहीं है तो उसको देने का, वो जैसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया फॉल्स लेबर, तो फॉल्स लेबर तो खुद ही सेटल हो जाती है। आप उसको सिडेट भी कर दे तो उससे सेटल हो जाती है, आपको कोई भी टोकोलिटिक एजेंट दे दे उससे सेटल हो जाती है। फॉल्स लेबर इज डिफरेंट। ओके सर, तो मतलब हम दोबारा टोकोलाइज नहीं करेंगे पेशेंट को अगर दोबारा 34 वीक्स के बाद कोई इतना एडवांटेज नहीं। ओके सर अगर इसी तरह ही एक पेशेंट को फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस 30 वीक्स पे होता है, वो सेटल हो जाता है, देन आफ्टर शी कम आफ्टर 2 वीक्स 32 वीक्स पे आती है, फिर दोबारा सेकंड एपिसोड होता है प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस का, तो हम दोबारा उसको सर टोकोलाइज करेंगे? करें अगर मैंने कहा ना कि वो पहली दफा पॉसिबली सेटल हुई कि वो एक्टिव लेबर में वाकई नहीं थी। किताब कह रही है कि टोकोलाइसिस इज ओनली टेम्परेरी, परमानेंटली सेटल नहीं होती, और वो टेम्परेरी फॉर फ्यू डेज अप टू 3 डेज, ताकि वो पीरियड में आप शिफ्ट कर दें उसको, वहां फिर वो लेबर में रहेगी, जाएगी। किताब के मुताबिक है, मेरे मुताबिक नहीं। सर एक क्वेश्चन है सर, पेशेंट को हम मेंटेनेंस डोज नेफेडिपिन की देंगे फिर टोकोलाइसिस करने के बाद? जी दे दीजिए। हाँ मेरा ख्याल है दे दे, कोई इंजेक्शन ग्रेविनैन लगवाते हैं फ्रीक्वेंटली ये लेबर। चले 10:30 होने वाले हैं, कोई एक सवाल पूछ लो फिर बंद कर। सर ये इंजेक्शन ग्रेविनैन का रोल बता दें, ये प्रीटर्म लेबर के साथ अक्सर ये शुरू में कहा गया कि अगर आपके ख्याल में पास्ट हिस्ट्री लेबर की है या सेकंड ट्राइमेस्टर में मिस की है तो उनको प्रोजेस्टेरॉन दिया जा सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन 2-3 शक्लों में आता है, एक लॉन्ग टर्म इंजेक्शन, वीकली इंजेक्शन, वजाइनल पैसरीज जो सुबह शाम रखनी होती हैं, या डेली इंजेक्शन। तो मेरे ख्याल में तो इजीएस्ट इज वीकली इंजेक्शन। प्रोजेस्टोजन का ग्रेविबिनॉन के नाम से बिकता है, वो लगाना आसान है।
आप कह सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इज वीक। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सर एक क्वेश्चन है। अस्सलाम जी वालेकुम। एक ही पूछिए फिर मैं हाँ जी सर, जो ट्विन है उसके लिए बेस्ट पॉलिसीज कौन सा है? और अगर हमने उसको नेफेडिल दे दिया है और पेशेंट का प्रीटर्म सेटल नहीं हुआ और वो डिलीवरी की तरफ जा रही है, तो मैग्नीशियम सल्फेट हम उसको नहीं लगा सकते, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है कैल्शियम पे, तो फिर हम उसको मैग्नीशियम दे नहीं सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उसको जहाँ पे आप हैं वही डिलीवर कीजिए। फिर ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर, लफ्ज लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर में शिफ्ट कीजिए। सर बस हाँ जी। सर ट्विन में हम लोग टोकलाइज करते हैं? इसमें सर ट्विन्स में जी नो वी डिडंट डू। नहीं करते सर, उसमें लिखा हुआ है कि क्यों नहीं करेंगे? ट्विंस के क्या नहीं, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। डॉक्टर